Bangladesh vision of Bangabandhu will be fulfilled. Once again, I thank you very much for participating in this event. I thank all of you for this. Thank you so much. Thank you, sir. The ceremony is now concluded. We thank you all for joining us today. Namaskar. Cross-border high-speed diesel pipeline constructed between the two countries was inaugurated. In a way, the energy security of Bangladesh has got a boost due to our cooperation. Let's talk about the energy sector. Bangladesh has moved towards self-reliance. Not only this year, a consensus has been reached between India, Bangladesh, and Nepal regarding some regional connectivity for exchange of electricity. Friends, our approach of Sabka Saath, Sabka Vikas, that is everyone's support and everyone's development, has been considered relevant by us even for our nearest neighborhood friendly country, Bangladesh. We feel proud of the fact that Bangladesh is our biggest development partner. During the last 9 years, approximately $10 billion assistance is being given for development of various sectors. The list of our achievement is so large that it will take a full day to explain the same. The decisions regarding the 3 projects today that we have taken, there is another special thing of today's program. The decisions regarding the 3 projects that we have inaugurated today was taken by us, and we are very fortunate that we are dedicating them to the people. My friends, I express my gratitude towards the Prime Minister Sheikh Hasina ji for the success of our joint endeavor. A few weeks back, she participated as a special guest in G20, and for this I express my gratitude towards her, and for this I am very thankful to Sheikh Hasina ji from the core of my heart. Excellency, India will extend its full support to take forward your Smart Bangladesh work. India will give its utmost cooperation. I am very glad that India is extending cooperation in building 12 IT parks in 12 districts of Bangladesh. A consensus has been reached in the fintech area to connect the payment gateways of the two countries. I am fully confident that with our shared efforts, the Shorar Bangladesh vision of Bangabandhu will be fulfilled. Once again, I thank you very much for participating in this event. I thank all of you for this. Thank you so much. Thank you, sir. The ceremony is now concluded. We thank you all for joining us today. Namaskar. বাংলা এটা ভিত্তিক কর্ণাটক 20 তারিখ 19 তারিখে অক্টোবর পর্যটনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার হতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগরতলা আখাউড়া রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে বর্তমানে আগরতলা কলকাতা রেলপথের দূরত্ব 1600 কিলোমিটার থেকে কমে 500 কিলোমিটার হয়ে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে আমাদের
বিশেষ করে অ্যাক্টিস্ট পলিসিতে, এটা হীরা মডেল আমরা বারবার বলি, যে হাইওয়ে, ইন্টারনেটওয়ে, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজ সত্যিকারের অর্থে এটা বাস্তবায়ন এখন হতে চলছে। এবং দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আপনারা কিছুদিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে সারা দেশে 508টি রেল স্টেশনকে রিডেভেলপমেন্টের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। আর নর্থ ইস্টে 91 রেল স্টেশন উন্নয়নের জন্য এই ধরনের যে রিডেভেলপমেন্টের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, তার মধ্যে 5100 কোটি টাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরাতেও 3টি রেল স্টেশন, সবাই আমরা জানি যে ধর্মনগর, কুমারঘাট ও উদয়পুর রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে এবং তাতে করে 96 কোটি 60 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে 3টি স্টেশনের যে উন্নয়ন ছাড়াও আগরতলা রেল স্টেশনকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন স্কিমের আওতায় যে আন্তর্জাতিক মানের রেল স্টেশন উন্নতি করার জন্য কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক পরিকল্পনা নিয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে 235 কোটি 45 লক্ষ টাকা। এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে আমি আগরতলা রেল স্টেশনে একটা এসকেলেটর ছিল এবং নতুন আরেকটা যে রেল, সেটাকেও আমরা উদ্বোধন করেছি, সেটা বোম্বেতেও যাবে। তো 2014 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কেন্দ্রে যখন আসলেন, অ্যাক্টিস্ট যেটা আমি একটু আগে বললাম, তার মাধ্যমে যে একটা কানেক্টিভিটি, সেটা কিন্তু অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তার উপর বিশেষ করে উনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেগুলো রূপায়িত হচ্ছে। এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য যা স্বাধীনতার গত 7 দশকও যা সম্ভব হয়নি, সেটা কিন্তু এখন হচ্ছে এবং হতেও চলছে। আমাদের বর্তমানে রাজ্যে মোট 19টি ট্রেন যাতায়াত করছে। এর মধ্যে 13টি এক্সপ্রেস ট্রেন, 5টি ডেমো ট্রেন এবং 20টা ডোমো আছে, আপনারা সবাই জানেন, এবং একটি লোকাল ট্রেন আগরতলা ধর্মনগর, সেটা পরিষেবায় চালু রয়েছে। তাছাড়া যেটা আমি বললাম 19 অক্টোবর যেটা আমরা ফ্ল্যাগ অফ করলাম, আগরতলা মুম্বাই সাপ্তাহিক লোকমান্য তিলক কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়েছে। আগরতলা রেল প্রকল্প 2016 সালে অনুমোদিত হয় এবং ধীরে ধীরে সেটা ডেভেলপ হয়েছে। আমরা আনন্দিত যে ত্রিপুরার মতো জায়গা থেকে এখন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের সাথে অলমোস্ট যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় হয়ে গেছে। এর জন্য আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ওনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং মোট রেল সংযোগের দৈর্ঘ্য 12.24 কিলোমিটার, যেটা এবার বাংলাদেশের সাথে যেটা আমাদের যোগাযোগ হলো, তার মধ্যে ত্রিপুরায় 5.46 কিলোমিটার এবং বাংলাদেশে যেটা আছে 6.78 কিলোমিটার। আমাদের জুলাই 2016 সালে যে প্রকল্প বরাদ্দ ছিল 972 কোটি 52 লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ভারতীয় অংশের জন্য বরাদ্দ 580 কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ অংশের জন্য বরাদ্দ 392 কোটি 52 লক্ষ টাকা। ভারতীয় অংশে প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয়ভার বহন করেছে ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রক এবং বাংলাদেশ অংশের জন্য একটু বাংলাদেশ এই খাতে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক এর ব্যয়ভার বহন করেছে। এখানে ভারতীয় অংশে যে কোম্পানি কাজ করছে ইরকন IRCON এবং বাংলাদেশ অংশে কাজ করছে টেক্সমেকো সংস্থা TEXMSCO। তো আজকের যে তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন হলো,
এর জন্য আমি আবার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং এইভাবে আমাদের বাংলাদেশের সাথে আমাদের যে মৈত্রী, যে এতদিন ধরে যে মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হবে, সেই আশা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটু আগে ওনার বক্তব্যে রেখেছেন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বক্তব্য রেখেছেন। আমি এর জন্য দুই প্রধানকে আমি আমার ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমি হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ দিতে চাই। ধন্যবাদ। Which are the sectors that will be boosted with this new connectivity? cross-border high-speed diesel pipeline constructed between the two countries was inaugurated. In a way, the energy security of Bangladesh has got a boost due to our cooperation. Let's talk about the energy sector. Bangladesh has moved towards self-reliance. Not only this year, a consensus has been reached between India, Bangladesh, and Nepal regarding some regional connectivity for exchange of electricity. Friends, our approach of Sabka Saath Sabka Vikas, that is everyone's support and everyone's development, has been considered relevant by us even for our nearest neighborhood friendly country, Bangladesh. We feel proud of the fact that Bangladesh is our biggest development partner. During the last 9 years, approximately $10 billion assistance is being given for development of various sectors. The list of our achievement is so large that it will take a full day to explain the same. The decisions regarding the 3 projects today that we have taken, there is another special thing of today's program. The decisions regarding the 3 projects that we have inaugurated today was taken by us, and we are very fortunate that we are dedicating them to the people. My friends, I express my gratitude. এটা বাম্পারই হয় এনে কইছস আইতে আইতে গেল একটু দাঁড়ান। তো 2022 সালের আমরা টেট ক্যান্ডিডেট। আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। গত ডিসেম্বর 29 তারিখ আর 30 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল। তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনো পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে।
আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। সমবেত হওয়ার একটাই কারণ, এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি। যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে। কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাশ করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না, এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। নমস্কার। একটাই কারণ, এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি। যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে। কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাশ করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না, এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। আমরা তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট, আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। গত ডিসেম্বর 29 তারিখ আর 30 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল। তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনো পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরপিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দিয়ে আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। এটা বাম্পারি এনে কইছস আইতা আইতো করে একটু দাঁড়ান। তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট, আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। গত ডিসেম্বর 29 তারিখ আর 30 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল। তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনো পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই
অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। সমবেত হওয়ার একটাই কারণ, এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি। যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে, কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাশ করার সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না। এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। নমস্কার। একটাই কারণ, এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি। যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে, কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাশ করার সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না। এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। আমরা তো 2022 সালের আমরা টেট ক্যান্ডিডেট, আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল। তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনো পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। এটা বাম্পারি এনে কইছস আইতা আইতো করে একটু দাঁড়ান।
योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर.के. सिंह, श्री जी. किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर.के. सिंह, श्री जी. किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज
गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले
वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर.के. सिंह, श्री जी. किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगलापो के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमने कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा
लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेक खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना गया है। एंड इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़े। खुलना बांग्ला पोर्ट रेल लाइन इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। ये खुशी है कि आज हमने मैटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेशी एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत बांग्लादेश और नेपाल अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को
जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर के सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से
बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री
शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर के सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता
ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार।
ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के
पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था।
हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए
भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में
3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में
विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है।
पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम पूरे किए हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है
उनका निर्णय भी हमने ही लिया था। और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। Friends, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सुनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई।
हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर.के. सिंह, श्री जी. किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई।
पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 IT पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है।
फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर के सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर के सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से
अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े
सभी साथीगण नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली
त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर.के. सिंह, श्री जी. किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में
हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश
आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई। इसे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इस रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटांग और मंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव ने कोविड महामारी के दौरान लाइफ लाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंची। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2050 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश आ रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। एंड हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है।
बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट कर रहा हूं। कुछ सप्ताह पहले G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 IT पार्क बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री R.K. सिंह, श्री जी किशन रेड्डी, इस समारोह से जुड़े सभी साथीगण, नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई।
2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा